8 डिसेम्बर 2019 सकाळ दुनिया ପାଇଁ प्रत्येक दिन भଳି भरपूर सकाळ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଓହାନରେ ଏହି ଦିନଟି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା କୋଭିଡ୍-19ର। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଚୀନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 30, 2020ରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କରାଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଗଲା, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଶିକାର ହେଲେ। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକା ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2020 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ 28 ନଭେମ୍ବରରେ ଦେଶର 3ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଟିକାକରଣର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ICMR ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ରମଣ ଆର୍ ଗଙ୍ଗା ଖେଡକର ଟିକା ଯାତ୍ରାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। सबको याद होगा जब ये लॉकडाउन लगा था, उस वक्त ICMR ने कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये कंपनियों ने भी अच्छे ढंग से काम किया। परिणाम ये हुआ कि जनवरी में हमारे देश में बने हुए वैक्सीन हम लोगों को दे पाए। ମହାମାରୀ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2021ରେ DCGI କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ତୃତୀୟ ଟିକା ସ୍ପୁଟିନିକ୍ ଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 16 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦିନଟି ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଲା। ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ତଥା କୋଭିଡ୍-19 ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର VK ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି। हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो कोल्ड चेन की व्यवस्था थी, उसमें स्पेयर कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश की सिरिंज बनाने की कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश में जो ट्रेनिंग पहले मिली हुई थी, थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद हमने सक्षम करा कि वो ये टीका भी तरीके से लग जाए। और टीकाकरण का जो एक्सपीरियंस है उसको देखो तो कितना वो सिस्टमबद्ध है कि आप जाते हो और वेट करते हो, फिर टीका लगता है, फिर ऑब्जर्व होते हैं, फिर आप जाते हो, फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक SMS आ जाती है, फिर आपको रिमाइंडर आता है। ये जो मास्टरी करी गई है SOP की, ये कमाल की बात है। और ऐसे रोज सेशन जो है वो आज मान लीजिए 65,000 सेशन थे और हमारी कैपेसिटी है 1,20,000 सेशन करने की। भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ के पब्लिक सेक्टर ने ये काम करके दिखाया है। और 95% जो टीके लगे हैं वो टीके वो हैं जो कि सरकार ने फ्री मुहैया करवाए हैं। ଡକ୍ଟର ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 75% ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में, इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ଗ୍ରୁପ NTAGIର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର NK ଆରୋରା ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କିପରି ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶତକଡ଼ା 2 ଜନସଂଖ୍ୟା ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି।
हमारी क्षमता इतनी है कि एक दिन में हम 2 से 2.5 करोड़ टीके लगा सकते हैं और इसका WHO में इसको मेंशन किया गया कि भारत दुनिया का एक ही देश है जहां पर एक दिन में 2% पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है करीब करीब 2% है, एक ही दिन में टीका दिया जाता है। ये हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये कोई ओवरनाइट का काम नहीं है, ये पिछले कई सालों से जो काम चल रहा था, लेकिन इस टीकाकरण की तैयारी पिछले साल जून जुलाई से ही शुरू कर दी गई थी और आज हम यहाँ पर पहुंच सके हैं। डॉक्टर अरोरा ए पर्यंत भारत में टीका यात्रा विषय कहते जे आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। हमने एक वो माइलस्टोन, वो मील का पत्थर हासिल किया है कि 9 महीने के अंदर ही इस देश में 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज दी गई हैं। जब वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू किया गया था तो बहुत लोगों को लगता था कि हमें इस आंकड़े तक पहुंचने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, लेकिन 9 महीने के अंदर ये हमने एक मील का पत्थर पे पहुंचे हैं। कोरोना सम्मुख योद्धा मानक पई टीका 2 फेब्रुआरी आरंभ होइथिला। कोरोना वॉरियर्स मध्य आगकू आसी टीकाकरण आरंभ करथिले। मेरा नाम मिस्टर उमेश कुमार है। मैं पिछले 20 साल से गांधी हॉस्पिटल ओम विहार उत्तम नगर नई दिल्ली में कार्यरत हूं। हमने कभी 20-25 साल में ऐसी कभी कल्पना नहीं की इतनी भयंकर बीमारी हमारे देश में आएगी। हम लोग कितने अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कभी कोई इतनी बड़ी महामारी देखा नहीं। इतने डर गए कि पेशेंट को टच करने में डर लगता था, अस्पताल जाने से डर लगता था। लेकिन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब से इन्होंने वैक्सीन लाए हैं, एक वैक्सीन लगते ही हमने थोड़ा निडर होकर अपना ड्यूटी शुरू कर दिया और अच्छे से पेशेंट की देखभाल करने लगे। दूसरी डोज लगने के बाद हम लोग और निडर हो गए और अच्छे से ड्यूटी करने लगे, मरीज को सेवा करने लगे। विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण अभियान गतिशील हेबारे लागिछि। फेब्रुआरी 18 सुधा यह 1 कोटी को अतिक्रम करिछि। सेही लोकमानक पई कोरोना सबुठारु अधिक विपद सृष्टि करिथिला, जेउमाने पूर्वरु किछि रोगरे असुविधारे पड़िथिले। 60 वर्षरु अधिक लोक एथिरे पीड़ित होइथिले। यह हृदयंगम करी सरकार मार्च 14 रु एही टीकाकरण अभियानर द्वितीय पर्यायर वरिष्ठ नागरिक मानक अंतर्भुक्त करथिले। निज अभिज्ञता बांटी गाजियाबादर 66 वर्षीय डीपी सिंह कहिसेंति जे टीका देबारे कोनोसी असुविधा नाही। कोविड के विरुद्ध लड़ाई रे यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली से कहिथिले। मेरा सीनियर सिटीजन से सभी से ये निवेदन है, कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं और इससे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। निज पत्नी को किडनी दे निज जीवन को दान करिथिबा अलाहाबादर दीपक कुमार श्रीवास्तव यही टीका पाइबा अभिज्ञता बांटी थिले। My age is 68 years. हमने अपनी किडनी भी डोनेट की है at the age of 51 year और I have already vaccinated. So I face no problem. I feel better और I feel myself safe. I request all other people to get vaccination. तृतीय पर्यायर एप्रिल 1, 2021 रु 45 वर्षरु अधिक समस्त नागरिकों को टीकाकरण कार्य आरंभ होइथिला। जेतेबेले चलित वर्ष एप्रिल रे कोरोनार द्वितीय तरंग आसिला, चतुर्थ पर्यायर मे 1 रु 18 वर्षरु अधिक युवक मानक पई टीकाकरण आरंभ होइथिला। चेन्नईर 24 वर्षीय अभिलाष भट्टनगर देशर युवक मानक प्रेरणा दैछंती। टीका पई यह बहुत गुरुत्वपूर्ण। वैक्सीन लगवाना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में बहुत ही फास्ट पेस पे वैक्सीनेशन हो रहा है एंड वी आर अ लैंड ऑफ यंगस्टर्स। वी आर द यूथ, द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री एंड आई वुड लाइक टू कॉल आउट ऑल द यंगस्टर्स टू कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19. Vaccination is the key to fight against the virus and now it's our chance to return to our community. Please आगे आएं, एक कदम उठाएं और वैक्सीन लगाएं और इसी के साथ अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें to get this absolutely necessary shot of COVID vaccine to protect ourselves and save our life. टीकाकरण अभियान रे टेक्नोलोजी बहु उच्चकु नैथिला। कोविड प्लाटफॉर्म एवं आरोग्य सेतु आप माध्यम रे लोकमाने आवश्यकीय समय एवं स्थान चयन करी टीकाकरण आरंभ कले। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोविड कितनी जानलेवा बीमारी है और उससे पूरे विश्व में किस प्रकार से कितने व्यक्ति जो है बीमार पड़े और काफी इसमें लोगों को सीरियस कंडीशन या सिकुली या कहिए कि इसका जो असर बाकी रह जाता है उसका असर पड़ा। तो उससे बचने के लिए, बचाव के लिए टीकाकरण एक ऐसी जरूरत पड़ गई जिसमें कि अगर बिना टीके के हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम इस बीमारी पर काबू नहीं पा पाएंगे और पूरा विश्व इसके जहाँ टीका बनाने की कार्रवाई कर रहा था उसके साथ साथ ये भी योजना बनाई जाने की चेष्टा चल रही थी कि किस प्रकार हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हर व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा मिले और टीकाकरण
करवाने के लिए सक्षम हो पाए। इस प्रयास में भारत में जो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप किए, वो इतने कारगर थे, इतने अच्छे साबित हुए कि उनकी वजह से हर व्यक्ति बहुत आसानी से रजिस्टर करा पाया और अपने आप को टीकाकरण करवाने के बाद सुरक्षित करवा पाया। और इसका नतीजा ये है कि भारत विश्व के सभी देशों में आज सबसे अग्रसर है। वो अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी प्राप्त कर लेगा और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, जिसमें अभी बच्चों का जिनमें अभी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, जिसकी अभी शायद कुछ दिनों में परमिशन मिल जाएगी, बहुत से प्रकार के टीके बन रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा उस ऐप बनाने वाले टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा इस ऐप को बनाया है, कोविन ऐप और आरोग्य सेतु, जो बहुत आसानी से सब व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए सुविधा दे रहा है और जिसके माध्यम से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंच आने में सक्षम हो पाए। कोविड रोकिबा पई सबुठारु प्रभावशाली उपाय होउछि कोविड टीकाकरण। प्रारंभरे एही विषय लोकंक मनरे अनेक संदेह थिला। एहाकु दूर करिबा एक चैलेंज ठारु कम नुहे। विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण अभियान को सफल करिबा पई सचेतनता वृद्धि पई पदक्षेप उपरे विशेष ध्यान दिया जाइथिला। जनसाधारण को सचेतन कराइबा पई गणमाध्यम यथासंभव चेष्टा करिथिला। ऑल इंडिया रेडियो कोरोना सचेतनता सीरीज माध्यम प्रत्येक छोट एवं बड़ सूचना स्वास्थ्य विशेषज्ञ माध्यम लोकंक निकट को आनिथिला। ए पर्यंत एही कार्यक्रमर 525 रु अधिक अध्याय समाप्त होईछि। एथिरे देशर विभिन्न प्रांतरू आसीथिबा श्रोता माने सेमानकर संदेह दूर करंती। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करी है इस साल, जैसे पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी हुई है। क्या वैज्ञानिक हमारे जो वैक्सीन के ऊपर और कुछ इसके अच्छा बेटर रिजल्ट आए और इससे ज्यादा बेटर अच्छी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो वायरस है नए नए रूप बदलता रहता है, अब वो चुपचाप बैठा है, वो भी देख रहा है कि ये हमारे विपक्ष में क्या काम हो रहा है, ऐसे वो भी अपना। तो ये मेरा कहने का है कि डॉक्टर साहब हमारे जो वैज्ञानिक है इसके ऊपर क्या आगे इन्होंने कुछ, जैसे एक प्रॉब्लम आ रही है सभी को, जैसे कि टीका लगाने के बाद बुखार और दर्द होता है, तो डॉक्टर वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा आगे कुछ ना हो, नए जो वैक्सीन बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन के बाद फीवर होना ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बच्चों को भी आप कोई भी टीका लगाते हैं तो काफी बच्चों को उसके बाद बुखार और इस तरह के लक्षण देखे जाता है, तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। कोई आप वैक्सीन देते हैं, आप उसमें एक एंटीजन या जो भी आप इम्यूनोजेनिक जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हैं, तो एक बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स जब उसके लिए शुरू होता है तो फीवर इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, वो नॉर्मल है। और जो शोध की आपने बात की, तो डेफिनेटली शोध चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान इस समय केवल कोरोना वायरस और उससे एसोसिएटेड वायरसेस पे है, उससे आप निश्चिंत रहे। और बाकी भी शोध चल रहे हैं कि क्या हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होगी, क्या हमें वैक्सीन कंबाइन करनी होगी, उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस सब चीजों का शोध कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है। सर मैं यहाँ के रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जिला का, मैं जानना चाह रहा था जिन लोगों की दूसरी डोज की डेट आ गई है और उनको आजकल वायरल चल रहा है, बहुत ज्यादा बुखार जुकाम खांसी है, तो वो क्या दूसरी डोज ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई वायरल फीवर है और तेज बुखार है, उस समय दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन में एक शेड्यूल में एक गैप दिया जाता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, कोई इसी के लिए दिया जाता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ऐसा कोई बिल्कुल रिजिड नहीं है कि 3 मंथ्स में ही आपको लगवाना है। आप जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 84 डेज, तो 84 डेज के बाद आप लगवाएं, लेकिन जब वायरल फीवर है, बहुत तेज बुखार है, तो न लगवाएं, उसका जाने का इंतजार करें और अपने डॉक्टर से राय करें। अनेक समय रे देशर स्वास्थ्यकर्मी तथा देशर आग धाड़ीर योद्धा माने टीका पाइबा द्वारा लोकंक द्वंद्व दूर करथिले। लखनऊ रे किंग जॉर्ज विश्वविद्यालयर फुसफुस चिकित्सा विभागर मुख्य डॉक्टर सूर्यकांत तांकर टीकाकरण करथिले एवं एही उपाय रे देशवासी सह तांको अभिज्ञता बांटिथिले। 16 जनवरी को जब टीकाकरण लॉन्चिंग शुरू हुई थी, उस दिन पहले दिन मैंने टीका लगवाया था और उसके बाद से मैं कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना, सारी एडवोकेसी की और बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया इस अभियान में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका को टीका उत्सव की तरह लगवाएं, तो भी उसको प्रोपेगेट किया। कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, इसको भी प्रोपेगेट किया और फिर कहा कि बाहू में इंजेक्शन लगवाइए और बाहुबली बन जाइए।
चाहिए, उसको भी समाज के बीच में प्रोपेगेट किया। भारत की गणना एक डेवलपिंग कंट्री में की जाती है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमने कोविड का मैनेजमेंट जिस तरह से किया है, हमने एक नहीं दो कोविड की वैक्सीन जिस तरह से बहुत ही कम समय में डेवलप की है और जिस तरह से हमने कोविड का प्रोटेक्शन वैक्सीन का करके दूसरे देशों को मुफ्त टीका भी उपलब्ध कराया है, यानी हमारा जेस्चर भी बहुत अच्छा है, काइंड जेस्चर है। और उसके साथ साथ अब हम 100 करोड़ जो कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हमने किया है। 16 जनवरी 2021 को जो टीकाकरण शुरू किया था वो हम लगभग 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला देश दुनिया का बन गया है जो इस करोड़ों के टीकाकरण का शतक पार करने वाला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीकाकरण अभियान रे समग्र देशर लोकंकु जड़ित करिबा एवं एहाकु समस्तक निकटरे पहुंचाइबार लक्ष्य रे जून 7 रे सरकार समस्तक पई वैक्सीन फ्री पदक्षेप नैथिले। एही महान अभियान 21 जून रु आरंभ होइथिला। तबे एही समस्त प्रयासर चमत्कार कोन थिला जे 6 अगस्त रे एही देश कोविड टीकाकरण क्षेत्र रे 50 कोटी अंक अतिक्रम करिथिला। दिल्ली एम्स र डॉक्टर निराज निश्चल कहिसंती जे सरकारक द्वारा परिचालित सचेतनता कार्यक्रम लोकंक उपरे बहुत प्रभाव पकाइथिला। कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल मैं कहूँगा कि है और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस अफवाहों को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन भ्रांतियों को दूर करने की बात हो, इन सब के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं। कोरोना संकट मध्य विपर्यय को सुजोग हिसाब रे बाट देखैथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर प्रमुख टीका उत्पादनकारी कंपनी माननको मेक इन इंडिया अधीन रे टीका प्रस्तुत करने भारत को आसवाक निमंत्रण करथिले। यह मध्य मेक इन इंडिया को उत्साहित करथिला। सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। तृतीय तरंगर भय मध्यरे देशवासी सेमानंकर दायित्व को विचार करी टीकाकरण अभियान रे अधिक उत्साह देथिले। 13 सेप्टेम्बर दिन को मने रखिबार कारण थिला टीकाकरण क्षेत्र रे देश 75 कोटी अंक अतिक्रम करी अन्य एक प्रमुख सफलता हासिल करिछि। भोपाल एम्स र निर्देशक डॉक्टर सरमान सिंह विश्वास करती जे केंद्र सह राज्यर उत्तम समन्वय एवं टीकाकरण केंद्र रे उन्नत रास्ता को सहज करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। भारत सरकार और राज्यों की सरकार, उनके जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे और जितने भी हमारे प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए जो लोग थे, सबके सहयोग से ही ये संभव था और इसमें ये सब ने मिलकर इस मुहिम में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत किए हैं और तभी ये पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है। जनवरी 16 रे जेतेबेले कोविड टीकाकरण अभियान आरंभ हैला सेतेबेले 100 कोटी संख्या स्वप्न परि थिला। वर्तमान मिलित उद्यम एवं जनसाधारण सहयोग रे एही स्वप्न साकार हेछि। मैं डॉक्टर मोना देसाई हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन डॉक्टर्स विंग की एक्स नेशनल चेयरपर्सन हूँ
और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व प्रमुख हूँ। हमारे देश के अंदर जब इतनी आबादी है, वहाँ हमारे गवर्नमेंट ने एक बढ़िया टारगेट रीच किया है कोविड वैक्सीनेशन का। हम नियरली 100 करोड़ के टारगेट पे पहुँच गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग देश है और यहाँ अनएजुकेटेड लोग भी ज्यादा होते हैं, तो उनको वैक्सीनेट करना इतनी बड़ी मात्रा में ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है और इसके लिए हम हमारे सरकार को कांग्रेचुलेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग ये थर्ड वेव कोविड की बात कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो एक बात है कि अगर हम लोगों ने 2 डोज ये कोविड वैक्सीनेशन के ले लिए तो हम एकदम सीरियस बीमारी से बच सकते हैं और हम ये थर्ड वेव पर आना रोक सकते हैं। तो हमारी सबसे ये अपील है कि प्लीज जिन लोगों ने 1 डोज ले लिए हैं, प्लीज जाके अपना दूसरा डोज ले लो। और अभी जो बच गए हैं जिन्होंने एक भी डोज कोविड वैक्सीनेशन का नहीं लिया है, प्लीज जाके आप ये वैक्सीन करवा दीजिए क्योंकि उससे आप अपनी जान को भी बचा रहे हो और अपने स्वजनों की जान को भी बचा रहे हो। भारत एबे आउ एक रेकर्ड सृष्टि करबाकू जाउछि। खूब शीघ्र आमे 1 बिलियन अर्थात 100 कोटी डोज आंटी कोविड टीका मध्य अतिक्रम करबाकू जाउछु। अनेक उपाय रे 100 कोटीर एही संख्या बहुत स्वतंत्र हेबाकू जाउछि। एम्स दिल्लीर विशेषज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा विश्वास करती जे यह तृतीय तरंगर संभावना को ह्रास करिबारे मध्य सहायक हेबो। गवर्नमेंट का 100 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, तो उससे बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आगे इन्फेक्शन आना है, अगर आएगा थर्ड वेव या आने वाला है या अगले जो फेस्टिविटी सीजन आ रहा है उसमें पॉजिटिव केसेस कम होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की अगर हम 100 करोड़ लोगों को लगा पाए। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 करोड़ लगाने के बाद हमें कोई ढील नहीं देनी। हमें अभी उसको हमारे और 20% लोग 25% लोग रह जाएंगे जिनको नहीं लगेगा, उनको भी हमें टीकाकरण कराना है और हमें जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम नीति रे भारत तार टीकाकरण योजना अंतर्गत अनेक देश को मागणारे टीका प्रदान करिबारे उपलब्ध कराइछि। कोरोना संकट मध्यरे भारत 100 कोटी डोज टीकाकरणर बड़ लक्ष्य हासिल करी विश्वर समस्त देश को एक वार्ता देइछि जे किछि करिबाकू आग्रह सहित जदि यार उन्नत परिचालना माध्यम आगकू बढ़े तेबे कौनसी भी लक्ष्य हासिल करिबा संभव। सारा देश रे यह उपरे उत्साह सृष्टि होइछि। मेरा नाम है पिल्लई शांति नारायण, पोर्ट ब्लेयर अंडमान से। मैंने दोनों डोज लिया है कि सेकेंड डोज लगने के बाद जो है ऑटोमेटिकली आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं सबका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो है कोविड की वजह से मूवमेंट सब रिस्ट्रिक्टेड था, तो हम लोग को भी एक पर्सनल डर था कि बाहर जाएंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो अपने घर वालों के लिए भी हम लोग को टेंशन था। अभी सेकेंड डोज लगने के बाद ये है कि हम लोग फ्री हो चुके हैं, प्लस हम लोग को ये भी टेंशन नहीं कि हाँ चलो घर आएंगे तो अपने बच्चे या अपने फैमिली वाले जो है इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे। I got vaccinated and protect myself from getting COVID. Vaccination is a safer way to protect ourselves and stop pandemic. Vaccine yourself and make others to vaccinate. We can only beat this pandemic if all people in India, if together we unite to protect vulnerable populations by ensuring vaccination and see that everyone should be vaccinated. मेरा नाम आनंदिता दे है, मैं अंडमान निकोबार द्वीप से हूँ। ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये योजना किया गया है टीकाकरण का, इसके वजह से अंडमान में जो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ कोरोना अगर संक्रमित होते हैं लोग तो बहुत जल्दी फैल सकते हैं। इसके वजह से जैसे जैसे हमने टीकाकरण किया हुआ है तो हमारा जो सेफ्टी का स्तर है वो अग्रसर हुआ है, जिसकी वजह से हम जो युवा जन है वो बहुत सेफ फील करते। जनसाधारण अंशग्रहण सहित कोविड टीकाकरण अभियान एक विराट जन आंदोलन रे परिणत होइछि। 100 कोटी डोज परे परवर्ती लक्ष्य हेउछि शतकड़ा 100 टीकाकरण। तृतीय तरंगर भय मध्यरे 1 बिलियन कोविड टीका डोज अतिक्रम करिबा अर्थ बहुत। खूब शीघ्र पिला मानकु टीकाकरण अभियान रे अंतर्भुक्त कराजिबो। डीएनए आधारित जाइकोव डी टीका डीसीजीआई रु जरूरी कालीन अनुमोदन लाभ करिछि। टीका परीक्षा मध्य समाप्त होइछि। जातीय वैषयिक परामर्शदाता गोष्ठी एनटीएजीआई रो मुख्य एनके अरोड़ा कहिसंती जे कोनोसी गुरुतर रोगरे पीड़ित सही पिलामानकु प्रथमे प्राथमिकता दियाजिबो। देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके।
और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे। अब रहा कि जो इस समय हमारे पास बच्चों के लिए क्या कोई टीके उपलब्ध हैं कि नहीं। भारत में बच्चों के टीके के लिए 3 और वैक्सीन जो है उनका ट्रायल चल रहा है। एक तो कोवैक्सीन है जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है और ये अगले महीने तक इसके परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। दूसरा एक कोवावैक्स करके है, वो 5 साल से 17 साल बच्चों के बीच के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 भारतीय वैक्सीन ही उपलब्ध होंगी बच्चों के लिए। अभी हाल ही में कैडिला जाइडस की वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन जाइकोवी डी आई है जो 12 से 17 साल में सुरक्षित है और प्रभावी है। इस वैक्सीन को अभी फिलहाल केवल किशोर अवस्था के लोगों को, बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो स्वस्थ हैं। केवल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें कुछ सीरियस बीमारी है, हो सकती है और जिसकी वजह से कोरोना का प्रभाव ऐसे बच्चों में अधिक होता है। ये लिस्ट बड़ी जल्दी तैयार कर दी जाएगी, शायद अगले हफ्ते तक इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। एभली परिस्थिति रे पिला माने कोरोना विरुद्ध रे लढिबा पई सुरक्षा कवच पाइबाकू जाउछन्ते। सफलता बड़ किंतु यात्रा ए पर्यंत अछि, समाप्त होई नाही। एही उत्सवर ऋतुरे कोविड प्रोटोकॉल अनुसरण करंतु। नुआ दिल्लीर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कहिसंति जे कोविड टीकाकरण क्षेत्र रे सफलता हासिल करिबा एक भल कथा, किंतु एही समय रे कोविड नियम पालन करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में नेचुरली जब ज्यादा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्टिव बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हमें यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक हो सके जो हमने सीखा है इस पेंडेमिक के दौरान 2 साल, वो सब हमें पालन करना पड़ेगा। तो उससे हमें बीमारी से लड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, एक तो जब भी ऐसे फंक्शंस हो तो एक तो ग्रुप ऐसे डिटेल किए जाएं जिसे कहते हैं ग्रुप सुपरवाइजर, वो ये देख सके कि हाँ लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। जहाँ तक अभी जो वैक्सीनेशन का सवाल है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ तक हो सके, जहाँ जहाँ हम वैक्सीनेशन लिए होंगे तो यदि इन्फेक्शन होगा भी तो हमको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि वैक्सीनेशन यदि हमें लगा है और हम बाकी सब मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने की प्रक्रिया है, सैनिटाइजर है, सब फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस कम हो। मास्क पिंधंतु, एक निरापद दूरता अनुसरण करंतु एवं साबुन पानी रे हाथ एवं मुह बारंबार धुअंतु। आउ हाँ, जदि आपण ए पर्यंत कोविड टीका पाई नाहंती तेबे जड़े दायित्ववान नागरिक भावरे निश्चित भावरे एही टीका नियंतु। कोविड उपरे विजय केवल तुमर समस्तंकर अर्थपूर्ण सहयोग एवं अवदान सहित संभव। कोरोना हारिब, देश जीतिब।